Hello everyone. In today's lecture we are going to start with chapter number 7 of our history book Changing Cultural Traditions. So here in the previous lecture we have studied that the earliest universities in Europe, they had been set up in the Italian towns, and these universities, they were first of all set up in the places of Italy like Padua and Bologna, and later on they spread in Florence also. Italy was the first place where the ideas of humanism were developed. The ideas which earlier developed in the Greek and the Roman civilization, but later on in the medieval age, these ideas disappeared. So we can say that by the early 15th century, humanist word or the term came out, and the people, the scholars, they started restoring their previous civilization, the works which were done during the ancient period by the Greeks and the Romans. They started reviving it out. So let's study more about it. Our topic is the humanist view of history, and here we will study that humanisms, they used to think that the age of darkness had come by the Middle Ages, and this all darkness appeared only after the end of the Roman Empire. So the later scholars also, without doing any of the question, they assumed that a new age had begun in Europe from the 14th century, and from 5 to the 14th century they have termed this period as the Middle Age, and 5 to 9th century, 5th to 9th century, they have termed it as a Dark Age. The term Middle Ages or the medieval period was used for the millennium. Millennium is a period of 1000 years, and it all happened after the fall of the Roman Empire. In Middle Ages, the scholars, they argued that the church had complete control over the minds of the people, and all the learning of the Greeks and the Romans, they had been blotted out. वो नॉलेज जो कभी हमने ग्रीक्स और रोमन्स ने हमें दी थी, उस नॉलेज का बिल्कुल द एंड हो गया. ह्यूमैनिस्ट ने यूज़ किया द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी, और उन्होंने अपने तरीके से इसको आगे डिवीज़न भी करी. 5th to 14th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड उन्होंने बोला कि ये हमारे मिडल एजेस हैं. 5th to 9th सेंचुरी डार्क एजेस, 9th to 11th सेंचुरी द अर्ली मिडल एजेस, 11th to 14th century the late middle ages, and from 5th to 15th century onwards उन्होंने बोला कि एक नए युग की शुरुआत होती है जिसमें हम अपने एंशियंट एज को रिवाइव करेंगे, एंड दैट इज़ अ मॉडर्न एज. अभी रिसेंटली हिस्टोरियंस ने इसी डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन किया और बहुत सारी रिसर्चेस भी करी टू फाइंड आउट कि क्या सच में 5th to 14th सेंचुरी का जो मिडल एजेस का पीरियड है, या अगर हम बात करें 5th to 9th सेंचुरी की, इसको डार्क एजेस कहना सही होगा. क्योंकि कोई भी एज, कोई भी टाइम पीरियड ऐसा नहीं होता जिसमें कोई किसी भी तरीके से कोई डिस्कवरी ना हुई हो, कोई इन्वेंशन ना हुई हो, या उसमें कोई डेवलपमेंट ना हो. सो जो स्कॉलर्स हैं वो इन डिविजन्स को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, एंड उनको बहुत ज़्यादा ये अनफेयर लग रहा है किसी भी टाइम पीरियड को डार्क एजेस का लेबल देने का. उनको लगता है कि कोई भी एज डार्क एज नहीं होती, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड अंधकार युग नहीं होता. साइंस एंड फिलॉसफी में हमने अरब्स की कंट्रीब्यूशन को पढ़ना है कि जो राइटिंग्स थी ग्रीक्स एंड रोमन्स की, दे हैड बिन फेमिलियर टू द मॉन्क्स एंड द क्लर्जी मैन, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, और मिडल एजेस में उनको इनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन ग्रीक्स एंड रोमन्स ने इस नॉलेज को आगे इम्पार्ट नहीं किया. 14th century में many scholars, they began to read translated works of the Greek writers. उन्होंने ग्रीक राइटर्स के जो ट्रांसलेटेड वर्क्स थे उसको स्टडी करना शुरू किया. इसमें 2 स्कॉलर्स का नेम आता है, वन इज़ प्लेटो एंड अदर इज़ अरिस्टोटल. फॉर दिस दे वर indebted not to their own scholars.
अब ये जो स्कॉलर्स थे 14th सेंचुरी के, जिस तरीके से उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल के वर्क्स को स्टडी करना शुरू किया, तो इसके लिए उन्होंने अपने स्कॉलर्स को थैंक्स नहीं किया, बल्कि उनका रियल थैंक्स किसको था? अरब ट्रांसलेटर्स को, जिन्होंने बहुत ध्यान से सदियों तक इस लिटरेचर को केयरफुली प्रिजर्व करके रखा और ट्रांसलेट की एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को, हैंड रिटन बुक्स को, और ताकि आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो इस सिविलाइजेशन की कंट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकें। अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु के नाम से बुलाया गया। Some European scholars read Greek in Arabic translation, and the Greeks they translated works of Arabic and Persian scholars for further transmission to other Europeans. तो ये जो भी अराबिक और पर्शियन स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन थी उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया गया ताकि यूरोपियंस उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। एंड दे हैव मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। ऐसे ही पटोलमी का नेम आया है, उनकी एस्ट्रोनॉमी को लेकर एक कंट्रीब्यूशन है, उस बुक का नेम है एल्मागेस्ट एंड इट इज़ रिटन इन ग्रीक। द टाइम पीरियड इज़ 14 CE, 140 CE कॉमन एरा, एंड लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। और इसमें एक अरेबिक डेफिनेट आर्टिकल आता है अल, जिसको हम बोलते हैं th द, और इस अल लेटर का जो कनेक्शन है वो अरेबिक कर से है। अमंग द मुस्लिम राइटर्स हु वर रिगार्डेड एज अ मैन ऑफ विजडम इन द इटालियन वर्ल्ड, इसमें एक मुस्लिम राइटर का नेम आता है इब्न सीना, जिसके बारे में हमने 4th चैप्टर में भी स्टडी किया था। ये अरब के एक फिजिशियन थे और फिलोसोफर थे बुखारा के इन सेंट्रल एशिया। और दूसरे अल राजी, रहीस भी बोल देते हैं, ही वॉज द ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। चिकित्सा से लेकर जो भी कोई जानकारी हासिल करनी है, किसी भी टर्म्स को हमने जानना है, तो उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी मेडिकल साइंस में। इब्न रशीद एक अरब के फ़िलासफ़र थे और स्पेन के रहने वाले थे। इन्होंने फ़िलासफ़िकल नॉलेज की और रिलीजियस बिलीव्स के बीच में जो भी कोई टेंशन्स थी उनको दूर करने की कोशिश करी, और लेटर ऑन इन्हीं के मेथड से इम्प्रेस होकर जो क्रिश्चियन थिंकर्स थे उन्होंने भी इसी मेथड को अडॉप्ट किया ताकि फ़िलासफ़िकल नॉलेज को और रिलीजियस बिलीव्स की जो टेंशन्स हैं उसको दूर किया जा सके। ह्यूमैनिस्ट रीच आउट द पीपल, कहते जो मानवतावादी विचारों के लोग थे उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए लोगों तक पहुंचने के लिए। दाओ द करिकुला मीन्स द सब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्सिटीज़, दे कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय लॉ, वहाँ पे लॉ पढ़ाया जाता था, मेडिसिन एंड थियोलॉजी। ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट्स स्लोली बिगैन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल, कि जो ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट्स थे, ग्रामर, पोइट्री, रिहॉट्रिक्स, अलंकारवादी, रस, ये धीरे धीरे करके बाद में स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किए गए, ना सिर्फ इटली में बट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स में जान लाने के लिए न्यू मेथड्स अडॉप्ट किए। फॉर्मल एजुकेशन वॉज नॉट ओनली द वे थ्रू विच ह्यूमैनिस्ट शेप देयर माइंड्स द माइंड्स ऑफ देयर एज। ह्यूमैनिस्ट का यह मानना था कि अगर हमने लोगों के मन में मानवतावादी विचारों को जगाना है, उसके लिए हमें उनको डिसिप्लिन रखकर, चार दीवारी में बंद रखकर ही उनके माइंड्स को मेकअप नहीं करना। इसमें हमें आर्ट, साथ के साथ आर्किटेक्चर एंड बुक्स, ये भी एक वंडरफुल वे है जिससे हम ह्यूमैनिस्ट आइडियाज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं अमंग द पीपल। आर्टिस्ट जो थे वो भी अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। पास्ट की बात जब हम करते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ग्रीक एंड द रोमन सिविलाइजेशन। उस समय के जो मटेरियल रिमेन्स थे रोमन कल्चर के, उसको स्टडी किया गया, एंशियंट टेक्स्ट से उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, बिकॉज इसके बारे में जो नॉलेज थी वो हज़ारों साल पहले तक ही सीमित रह गई थी। इट वॉज नॉट कैरिड आउट फॉरवर्ड इन द मिडल एजेस। तो जो भी कोई स्कॉलर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपने आर्ट के इन फ्रेगमेंट्स को, इन पार्ट्स को खोजने की कोशिश करी, इसको डिस्कवर किया, जो कि रोमन एम्पायर के फॉल के बाद बिल्कुल रूइन हो गए थे, बर्बाद हो गए थे।
और वो ऐसी सिटीज़ जो कि आर्ट और आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड थी उनके रिमेन्स को स्टडी किया। एंड देयर एडमायरेशन फॉर द figures of perfectly proportioned men and women sculpted so many years ago made Italian sculptors want to continue that tradition। अब उन्होंने देखा कि इस टाइम पर जैसे उन्होंने रिमेन्स को स्टडी किया स्कॉलर्स ने, मॉडर्न एज के स्कॉलर्स ने, तो उन्होंने पाया कि उस टाइम पर जिस तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसमें प्रपोर्शन बहुत अच्छा था। बिकॉज जो भी किसी तरीके से ये स्कल्पचर्स बनाए गए वो बिल्कुल लाइवली से लगते थे, उनके अंदर एक रियलिटी थी। तो ऐसी ही रियलिटी को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर लाने की कोशिश की। एक ये यहाँ पे एक साइड पे आपकी पेंटिंग है, पेंटिंग का नेम है पियाटा। पियाटा की पेंटिंग बनाई माइकल एंजेलो ने। इसमें डिपिक्ट कर रहा है, क्या शो कर रही है, चेयर के ऊपर बैठी है मदर मेरी जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की बॉडी को, जीसस क्राइस्ट उनके सन हैं, उनकी बॉडी को अपनी गोद में उठा रखा है। 1416 में डोनाटेलो आए। ही ब्रोक न्यू ग्राउंड कि उन्होंने एक नया इतिहास जो था वो जारी किया, अपने ऐसे स्टैटूस बनाकर जिनमें बिल्कुल प्राण लगते थे। आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प्ड बाय द वर्क्स ऑफ साइंटिस्ट। आर्टिस्ट ने अपने वर्क में और एफिशिएंसी और क्वालिटी लाने के लिए साइंटिस्ट की हेल्प ली। उन्होंने मेडिकल लैब्स में जाकर बोन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना शुरू किया। वो मेडिकल के स्कूल्स में गए, लेबॉर्ट्रीज को में जाने लगे ताकि वो ह्यूमन की बॉडी की जो शेप है उसको स्टडी कर सके, नंबर ऑफ बोन्स के बारे में पता लगा सके। ये सारी जो माइन्यूटनेस थी उन्होंने अपने पेंटिंग्स में लाई। एंड्रियास वेसालियस बेल्जियन के एक प्रोफेसर थे मेडिसिन के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया सो दैट ही कैन कम टू नो मोर अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड सच kind of work he can show in his sculptures and in the paintings। और ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करने के बाद ही यहाँ पर एक बिगनिंग हुई मॉडर्न फिजियोलॉजी की। अब पेंटर्स के पास कोई इस तरीके का कोई स्पेसिमन तो था नहीं, कोई पुराना वर्क तो था नहीं जिसको वो अपना एक मॉडल के रूप में यूज़ कर सके। बट उन्होंने जो पुराने स्कल्पटर्स देखे, जो पुराने स्टैचूज़ देखे, वो उनको बिल्कुल लाइफ लाइक लगे और उन्होंने अपनी इन पेंटिंग्स को भी एक रियलिस्टिक रूप देने की कोशिश करी। एंड पेंटिंग्स को एक रियल रूप देने के लिए उन्होंने नॉलेज ली ज्योमेट्री की, ताकि वो अपने इस पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। एंड दे हैव ट्राई टू नो द चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट। और उनकी जो पिक्चर्स थी उसमें उन्होंने 3 डायमेंशनल क्वालिटी लाने की कोशिश करी। कलर्स जो हैं वो और ज़्यादा ब्राइट नज़र आए, उनमें काफ़ी ज़्यादा रिचनेस हो, तो उसके लिए उन्होंने कलर्स के अंदर ऑयल को मिक्स करना शुरू किया। कलर्स इन द कलर्स एंड डिज़ाइंस ऑफ कॉस्ट्यूम्स को और ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, उनको अच्छी डिज़ाइनिंग देने के लिए पेंटर्स ने इन सारे आर्ट को लर्न करने की कोशिश करी। और इनसे वो ये वाला आर्ट उन्होंने कहाँ से सीखा, फ्रॉम द चाइनीज़ एंड द पर्शियन आर्ट। और ये आर्ट उनको अवेलेबल करवाया था मंगोल ट्राइब्स ने। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट एनाटॉमी ले लो, ज्योमेट्री ले लो या फिजिक्स ले लो। सो दिस ऑल वॉज यूज्ड बाय द इटालियन आर्टिस्ट to have a new quality of images, to have a new quality of art in their paintings। और इसी से ही उन्होंने बिगनिंग करी द रियलिज्म की, रियलिटी की, और वो रियलिटी कंटिन्यूड रही टिल द 19th सेंचुरी। सो ये कंट्रीब्यूशन देकर उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी पिक्चर्स बनाए, जितने भी स्कल्पटर्स बनाए, दे वर लाइफ लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।